Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as we have completed our chapter number 12 up to exercise 12.6, and now today it's time for starting the new chapter. So here I am with you to start with your new topic. Okay, so before introducing the topic, I would just like to show you something. So what is it? It is a clock. It is a clock. ये क्या है? घड़ी है, clock है. Okay, it's a real clock actually. Okay, so it is a clock. Okay, and what does it show? It shows time. Okay, so it is a clock. It shows time. Okay, so अगर हमें कोई भी काम, what is the importance of time in our life? The time is very important because we have to do all the works according to the time only. Okay, जो हम कोई भी काम करते हैं वो हम according to time करते हैं, and not talking about this clock. I'm just talking about the time. So time has a very great importance in our life. Okay, so every time whatever we do, that is scheduled according to the time. कुछ भी काम हो बेटा, आप देखिए हर चीज़ में the time is the most important thing. अगर आपको कोई काम करना है तो आपके पास टाइम है कि हाँ इतने बजे करना है. आपको खाना खाना है तो पता कि सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock बिफोर आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है, बिकॉज आफ्टर 9 o'clock यू विल बी हैविंग योर रेगुलर क्लासेज, एंड यू नो दैट यू आर हैविंग योर क्लास ऑफ GK ऑन 9 o'clock on from Thursday to Saturday. So all the work that you are doing, that you have, suppose during before corona you have to go to school, that you have to reach the school by 7:15. So all the things, all the activities, whatever you do from till morning to the evening or till the night, that you do with the time. Okay, so time has very much important in your life. So for seeing that time you need a clock. Okay, so time देखने के लिए आपको क्या चाहिए? Clock. So that what am I having here? Okay, so before talking about this clock, I would like to just ask you some of the questions. So you can't answer it, so I will ask and you will just answer by yourself. Okay, so as you can see, what is the time here? So it is showing 3 o'clock. Okay, so it is showing 3 o'clock. Now it's 6 o'clock. Now it's 9 o'clock, and now the both of they are on the same. Now it's 12 o'clock. Okay, morning or evening, that depends upon the time. सुबह के हैं तो AM है, शाम के हैं तो रात के हैं तो PM है. Okay, so this is the topic that we are going to discuss, that is time. So this is our today's topic. So today we are going to start with the chapter number is 13, and the topic is time. Time. This is a new topic that we are going to start with in today's session. Okay, so time, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आप में से कई बच्चे होंगे जिनको टाइम देखना आता है, कईयों को नहीं भी आता होगा देखना. ओके, बट आई विल जस्ट ट्राई कि जिनको नहीं आता दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइमिंग. सो वेन एवर समवन आस्क यू अबाउट द टाइम, दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम राइट नाउ, सो यू कैन टेल दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग फर्स्ट. हियर we have learned in the standard 3 about the measurement of time. Let us recall what have learned earlier. तो आप ऑलरेडी क्लास 3 में भी आपने टाइम के रिगार्डिंग ही चैप्टर किया हुआ है, जिसमें कि आपने टाइम Q2, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर हाफ पास्ट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव डन. सो वी आर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट we will continue with the syllabus of our class 4. Okay, so first of all, before telling you that what are the topics, I would just like to tell you that आपको पता है कि कोई भी क्लॉक, एवरी क्लॉक, कोई भी किसी भी, मतलब सपोज इट इज 12 o'clock, तो एक दिन में 12 कितनी बार बजेंगे? 2 times. ओके, एक दिन में 12 कितनी बार बजेंगे? 2 times. ओके, वन डे, एक दिन में 1 o'clock कितनी बार होगा? 2 times. 1 at the night, 1 AM, that is the night. So right now it is 7 o'clock. Okay, while I'm making this video, it is 7 o'clock. Okay, so this is 7 o'clock. So this is the time. Okay, and this time is of the evening. Okay, अभी ये 7 o'clock evening के हो रहे हैं. And by the morning, and when again जब ये घूम के पूरा चक्कर लगा के वापस आएगा,
सो इट विल बी द 7 o'clock ऑफ द मॉर्निंग. सो मतलब कोई भी जो आर है वो एक दिन में कितनी बार आता है? ओनली 2 times. कोई भी जो सेम टाइम्स वो रिपीटेड ओनली ट्वाइस इन अ 24 hours. 24 hours में सेम टाइम कितनी बार रिपीट होता है? ओनली 2 times. ओके, सो दैट मीन्स वी हैव टोटल 24 hours इन अ डे. ये तो सबको पता होगा कि वी हैव 24 hours इन अ डे. हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो एक दिन में 24 घंटे में जो एक सिमिलर टाइम दैट रिपीट्स ओनली फॉर द 2 time only. ओके, नाउ सो देखिए हमारे पास क्लॉक देखने के 2 तरीके होते हैं. द फर्स्ट इज द 1200 और 12 hour clock and the second one is the 13 hour clock. So what is 12 hour clock and what is 24 hour clock? So there are two hour clocks are there. The first one is the 12 hour clock and the second one is the 24 hour clock. So 12 hour clock क्या होती है? जिसमें कि हम AM and PM यूज करते हैं along with the time. Okay, so suppose you I just मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि that you will be having your maths class at 1 PM daily, except on Sundays or except on any public holiday. So you will be having your maths class daily at 1 PM. Okay, so that means I am telling you that you will be having आपको दोपहर के 12 बजे, PM means दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम. So that means 12 बजे के बाद जो 1 बजेगा उस तब आपकी क्लास होगी. Okay, so this is the time I am telling you that you will be having your maths class at 1 PM. आपको कैसे पता कि दिन के रात के 12 बजे 1 बजे की बात कर रही है मैम या दिन के? जेन्युइन बात है, मैं आपके दिन के 12 बजे की बात कर रही हूँ बिकॉज इट्स PM. Okay, again if I told you that you will be having your maths class daily at 1300 hours. So you will be having your maths class at daily at 1300 hours. So 1300 hours means what does it mean? देखिए जब रात के 12 बजे से टाइम शुरू होता है, so रात के 12 बजे से शुरू होता है, देन रात के 12 बजे से लेके पूरे दिन के 12 बजे और दिन के 12 बजे तक इट इज़ AM. ओके, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक इट इज़ AM. ओके, एंड उसको हम टाइम पीरियड को 1 2 3 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM एंड सो ऑन अप टू 12. और जैसे दिन के 12 बजते हैं सो इट विल बी PM. सो जैसे दिन के 12 बजेंगे दैट विल बी PM. नाउ द टाइम स्टार्ट्स विद द PM. ओके, सो दिन में डे में आपके PM स्टार्ट होएगा. सो नाउ आफ्टर 12 PM इट विल बी 1 PM, देन 2 PM, देन 3, देन 6, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11 एंड अगेन इट्स 12 AM. तो फिर दोबारा से 12 क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा. ओके, तो ये हो गई. देखिए AM एंड PM से हमने रेक्टिफाई किया कि दिन का टाइम है या रात का. सो दैट इज 12 आवर क्लॉक. सो लेकिन अगर वही हम 24 आवर क्लॉक को लेंगे, सो दिस इज अवर 12 आवर क्लॉक. इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? 12 आवर क्लॉक की. एंड इन 1300 क्लॉक वी आर टॉकिंग अबाउट 24 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक. सो व्हाट इज 24 आवर क्लॉक? ओके, जिसमें कि दोपहर के 12 बजे के बाद 1 PM नहीं होता, इट्स 13. ओके, स्पेशली जो ये टाइम है 13 14 ये आर्मी में चलता है, रेलवे में होता है एंड एयरलाइंस में होता है. ओके, सो दे टेक देयर टाइम इन द 13 दे ऑलवेज राइट देयर टाइम्स अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक. आपने कभी भी अगर इफ यू विल बी हैविंग एनी ओल्ड रेलवे टिकट, अगर आपके पास आपकी कोई भी पुरानी रेलवे टिकट पड़ी हो, जस्ट ओपन इट एंड सी द टाइम. और एन प्लेन टिकट यू विल बी हैविंग, सो उसको देखिए और देखिए उस पर लिखा होगा द टाइम विल बी इन द 24 आवर क्लॉक. Okay, suppose you want to come to you want to go from Varanasi to Delhi by the Vande Bharat. Okay, that goes I think वो यहाँ से 3 बजे निकलती है. So the time written on your ticket will be the 1500 hours. It will not be 3 PM, it will be 1500 hours. So the railway है, airlines है और जो military है, they work on the 24 hour clock. So that means जैसे ही ये दोपहर के 12 बजे उसके बाद जो next 1 o'clock होगा, so that will not be 1 o'clock, that will be 13 hour clock. Then it will be 1400 hours, 15, 16, 17, 18, 19 and again जब रात के 12 बजेंगे that will be 2400.
Okay, hours. So that will be 2400 hours. Okay, so this time, this is how the clock moves in the two different pattern, 24-hour clock and the 24 and 12-hour clock. Okay, so these are the basic things that you already know. Now starting about the time. Okay, so देखिए हमारे पास ये clock है. So in this we are having how many hands we are having? This one is the long one and the second one is the small one. Okay, so we are having two hands. A clock is having the two hands, but actually a clock doesn't have only two hands, it has three hands. The third one is the, okay, so first of all I'll just tell you what is it. This is the smaller one, this is the R hand. इसको हम बोलते हैं R hand. इसको कई बच्चे our hand बोलते हो, but it is not our hand, it is R hand. घंटे का, जो घंटा बताता है कि कितना टाइम हो गया. So this is the small one is the R hand and this bigger one is the minute hand. This bigger one is the minute hand, जो कि मूव करता रहता है. देखिए अब मैं इसको मूव कर रही हूँ. जस्ट सी द पोजीशन ऑफ दिस वन. ओके, सपोज आई हैव जस्ट पुट इट हियर. अभी मैंने दोनों को यहाँ रखा बिकॉज इट्स अ रियल क्लॉक, सो डेफिनेटली इट विल वर्क, आई होप. अभी 12 o'clock हो रहा है. ओके, अब देखिए इसको मैं मूव करूँगी 1 राउंड. इसको मैंने 1 राउंड कंप्लीट किया, लेकिन वो ही है जो हमारा आर हैंड है वो 12 से 1 तक ही आया. अगेन आई हैव कैप्ट, इसकी मैंने एक और मूवमेंट की, तो तब तक जो मेरा स्मॉल हैंड था दैट मूव टू 2. सो दैट मीन्स इसने अपने जो ये मिनट हैंड है इसने अपने 60 मिनट्स कंप्लीट कर लिए, बट ये आर हैंड है इसने सिर्फ 1 का डिफरेंस लिया. सो दैट मीन्स जो ये दिस इज अवर आर हैंड एंड दिस इज अवर मिनट हैंड. इसको हम क्या बोलते हैं? आर हैंड. द स्मॉलर वन इज द आर हैंड एंड द बिगर वन इज द मिनट हैंड. बिगर वन इज द मिनट हैंड. ओके, सो जो आर हैंड है दैट मूव्स वेरी स्लोली एंड द मिनट हैंड इट कीप्स ऑन मूविंग आफ्टर एवरी मिनट. ओके, जो मिनट हैंड है इट कीप्स ऑन मूविंग आफ्टर एवरी मिनट. ओके, वन मोर थिंग, जो ये मिनट हैंड हमारा मूव करता है. ओके, सो दिस इज द, ओके, नाउ इन आवर हाउ मेनी मिनट्स यू आर हैविंग. एक आवर में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं? दैट इज 60 मिनट्स. सो दैट मीन्स अगर ये जो मिनट हैंड हमारा यहाँ तक गया, सो दैट इट हैज कवर्ड 5 मिनट्स. तो आपको कि मैम 12 से 1 के बीच में तो 1 नो, इट्स 5 मिनट. देखिए यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आपको लाइंस नजर आ रही होंगी ऊपर. दैट इज 1 मिनट, देन 2 मिनट, देन 3, देन 4 एंड देन इज 5. तो जो स्मॉल स्मॉल लाइंस आपको नजर आ रही हैं दैट इज द मिनट. ओके, ईच एंड एवरी मिनट. ओके, सो जो हमारा ये मिनट हैंड है ये फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू द और हैंड. और ये हर इवेंट जब इट गोज फ्रॉम 1 डिजिट टू द अदर, 1 से लेके 2 पे गया तो दैट इट कवर. तो हर 2 डिजिट्स के बीच में इट कवर्स 5 मिनट्स टू मूव. ठीक है, एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक जाने के लिए उसको कितना मिनट लगता है? इट टेक्स 5 मिनट्स. ओके, सो 5 मिनट्स करते करते एक आवर में वो कितने मिनट्स कवर करता है? 60. सो इन 1 आवर दिस मिनट हैंड कवर्स 60 minutes. Okay, and the difference between the two digits, that is 1 and 2, is always 5 minutes. Okay, so the question is that how many minutes does an hour have? An hour have 60 minutes. Okay, and what is the difference between the two digits? Okay, that are given in the continuum. The 2 digits है जो कि अगल बगल में ही दिए हैं. So that is the 5 minutes only. Okay, so now the topic is reading time to 5 minutes correctness. Okay, reading time to the 5 minutes correctness. Okay, अब जो हमें टाइम रीड करना है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि टाइम को हम कैसे रीड करेंगे. ओके, नाउ देखिए, नाउ इट इज 3 o'clock. ओके, नाउ सपोज अभी 3 बजने में ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी. अभी 3 इट विल बी. अभी देखिए हमारी जो ये है हमारी जो आर हैंड है वो अभी 3 पे पूरी कंप्लीटली नहीं आई है. इट इज़ हेयर. जब ये यहाँ पे पूरी प्रॉपरली आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये 3 पे आ गई है, बट अभी ये यहीं पे है. ओके, एंड अवर मिनट हैंड इज हेयर ऑन द 10. सो दैट मीन्स व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? सो ये टाइम कितना हो रहा है? दैट इज 2:50 जिसको हमने 2:50. ओके, सो टाइम विल बी 2:50 AM or PM, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. So the time is 2:50. The time is 2:50. Okay, so in spite of writing 2:50, you can say that only 10 minutes to 3.
3 बजने में 10 मिनट रह गए। देखो हम उसको दो तरह से बोल सकते हैं कि 2:50 हो चुके हैं या 3 बजने में 10 मिनट रह चुके हैं। सो दिस इज द टाइम दैट दिस इज द वे दैट यू गिव द आंसर कि अभी टाइम कितना हो रहा है, यू विल से कि 2:50 हो गए हैं, या तो आप बोलोगे 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। दिस इज द वे ना, बट द करेक्ट वे इज दैट यू मस्ट से दैट इट इज 10 मिनट्स टू 3। 10 मिनट्स टू 3 मतलब 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। सपोज इट मूव्स टू हेयर, नाउ you can say 2:55 also, it is 2:55, or you can say 5 minutes to 3, 5 minutes to 3। so आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, 5 minutes to 3 और 2:55, but the correct one is 5 minutes to 3। okay, तो आप ये बोलने भी कि 2:55 हो रहे हैं, 2:55 हो रहा है, so in spite of that you must say इट इज 5 minutes to 3, 3 बजने में 5 मिनट्स बाकी हैं। दिस इज द करेक्ट वे। ओके, अगर आप कहते हो कि 2:55 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट जनरली इट इज सेड दैट इन स्पाइट ऑफ, अगर डिफरेंस ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ टाइम होने में सिर्फ 5 मिनट्स बाकी हैं, तो इन स्पाइट ऑफ सेइंग 2:55 यू कैन से इट इज ओनली 5 minutes to 3, 5 minutes to 3। ओके, सो देखिए वैसे आपकी बुक में रीडिंग टाइम टू 5 minutes करेक्टनेस, रीडिंग टाइम टू 5 minutes करेक्टनेस। इन दिस फिगर द आर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, द मिनट हैंड इज एट 6। ओके, जो आर हैंड है वो आपका 2 और 3 के बीच में है। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल फ्रॉम द बुक। द आर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, जो कि मेरा भी है यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, एंड जो मिनट हैंड है, एंड द मिनट हैंड इज एट 6, और मिनट हैंड मेरा 6 पे है। आर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, ओके, एंड द मिनट हैंड इज एट 6। आर हैंड देखिए, जो हमारा आर हैंड है दैट इज बिटवीन 2 and 3 एंड मिनट हैंड इज एट 6। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टाइम इज, ओके, व्हाट इज द टाइम, यू विल से 2:30, ओके, 2:30, ओके, और एक और तरीका है दैट 30 minutes to 3। तो देखिए एक ही टाइम को बताने के आपके पास 3 तरीके हैं। ओके, यू कैन से इट्स 2:30, ओके, 2:30 और 30 minutes to 3। तो बट फॉर दिस देखिए टाइम गैप बिटवीन 3 बजने पे भी आधा घंटा पड़ा है और 2 बज के भी 30 मिनट्स हो चुके हैं और 3 बजने में भी 30 मिनट्स बचे हैं। तो यू विल से इट 2:30 और 2:30। तो इसको आप दो तरह से मेंशन करेंगे, इट इज 2:30 और 2:30। ओके, सपोज यही सेकेंड एग्जाम्पल इज द टाइम, ओके, द फिगर 2 यू विल साइन दैट आर हैंड इज एट बिटवीन 5 and 6। जो आपका आर हैंड है वो 5 and 6 के बीच में है। ओके, द टाइम इज 55 minutes past 5। तो ओके, सो योर आर हैंड इज बिटवीन 5 and 6। जो आपका आर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है, और जो आपका मिनट हैंड है दैट इज एट 11। सो दैट मीन्स हाउ मच टाइम इज इट, इट इज 55 minutes past 5। तो 5:55 हो चुके हैं, मतलब 5 बजे हुए 55 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। और यू कैन से दैट इज इट्स ओनली 5 minutes to 6। तो 6 बजने में भी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बाकी है। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज ओनली 5 minutes to 6। ओके, तो 6 बजने में हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। तो देखिए एक ही टाइम को बताने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ओके, 2 और 3, ओके, 2 at least 2, in the 2 way you can write your answer, that is it is 5:55 or 5 minutes to 6। so both you can use। okay, so this is how you are going to write the answer। so the answer should be written in the 5 minutes to 6। okay, देखिए 6 बजने में आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो in spite of writing 2:55 you can write 5 minutes to 6। so this is the correct way। okay, so this is how you are going to read the time। okay, so whatever is given in your book। okay, so let's start with the exercise that is 13.1। so I'll just write on the topic, okay, the exercise number। I hope now it is clear to you that how a clock moves। okay, so there are 60 minutes in an hour and 3600 seconds in an hour। just keep in your mind। okay, so now we are going to start with the topic
Okay. The exercise is unknown time. This is the chapter name, and the exercise is 13.1. Okay. Okay. So now read the watches and complete the sentences. आपके पास देखिए बुक में वॉचेस बनी हुई हैं अलग अलग. ओके, और आपको उसको वॉच को देखते हुए आपको टाइम लिखना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द वॉच हेयर, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई ओरिजिनल वॉच हेयर. तो मैं यहाँ आपके ओरिजिनल वॉच यूज करते हुए आपको पूछूंगी दैट व्हाट इज द टाइम. सो आई टुमारो आई विल ट्राई दैट आई शुड जस्ट स्टक इट समवेयर सो दैट यू कैन सी द टाइम. ओके, शुड आई स्टक इट हेयर? Okay, now it's I think little bit high. चलिए अभी हम इसको उतारते हैं. Tomorrow we will fix it somehow so that you can see the time. Okay, so देखिए हमारे पास ये जो क्लॉक है. Okay, so according to this first question, read the watches and complete the sentences. Okay, तो देखिए टाइम आपकी जो according to your book, the time, the first question, the time is this. The hour hand is at 5 and the minute hand is at 8. Okay, so this is how it is showing in the first question. Okay, जो first question का A part है. Okay, so this is the time that is already being shown. Okay, so let's write the question first. The time is dash minutes. The time is dash minutes past dash. Second is the time is dash minutes to dash minutes to dash. Third one is its symbol it is तो देखिए एक ही टाइम की बात हो रही है यहाँ पे और एक ही टाइम को तीन तरीके से हम डिफाइन करेंगे. देखिए नाउ स्टार्टिंग विद द क्लॉक. ओके, सो दिस इज द टाइम दैट इज बीइंग शोन इन योर बुक. तो टाइम आपकी बुक में ये दिखा रहे हैं. द आवर हैंड इज एट 5 एंड द मिनट हैंड इज एट 8. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द टाइम इज डैश मिनट्स पास्ट. तो देखिए आपको ये पता है कि 5 ऑलरेडी बज चुके हैं. ओके, सॉरी 5 बजने वाले हैं क्योंकि 5 के पास है ना वो. ओके, सो दैट मीन्स 5 o'clock 5 बजने वाले हैं. सो दैट मीन्स अगर आप कहें तो कौन सा टाइम पास हुए ऑलरेडी, इट इज 40 मिनट्स. दैट इज 4 o'clock हुए ऑलरेडी कितने मिनट्स हो चुके हैं? 40 मिनट्स. सो दैट मीन्स द टाइम इज 40 मिनट्स पास्ट 4. द टाइम इज 40 मिनट्स पास्ट 4. 4 बजे हुए ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं. 40 मिनट्स पता है ना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5 मिनट्स का गैप है हमारे हर डिजिट, 2 डिजिट्स के बीच में, पैरेलल डिजिट्स के बीच में. ओके, सो दिस ऑलरेडी 40 मिनट्स पास्ट 4 बिकॉज इट इज अबाउट टू 5 o'clock. सो दैट मीन्स 40 minutes of 4 o'clock has already been passed. So it is, the time is 40 minutes past 4. तो 4 बजे हुए ऑलरेडी 40 मिनट्स पास हो चुके हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, द टाइम इज डैश मिनट्स टू डैश. ओके, 5 बजने में कितने मिनट रह गए हैं? दैट इज द क्वेश्चन. 5 बजने में हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं? सो लेट्स काउंट 5, 10, 15, 20. सो 5 o'clock होने में हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं? ओनली 20 मिनट्स. सो द टाइम इज 20 minutes to 5. 2-5 मीन्स बजने वाला. देखिए 2 किसके साथ होता है? जो टाइम हमारा अभी होने वाला है, जो अभी क्लॉक स्टक करने वाली है. सो इट इज
20 minutes to 5. 20 minutes to 5. So time is 5 बजने में अभी हमारे पास 20 minutes, बाकी दैट इज 20 minutes to 5. नेक्स्ट, और अगर आपको यही टाइम लिखना हो, ओके, इफ यू वांट टू राइट और इफ इट इज सेड दैट यू हैव टू राइट दिस टाइम somewhere, so how you are going to write? It will be 4:40. No AM and no PM because it is not determined that whether it is night or whether it is morning. Okay, so you will write just it is 4:40. The time is 4:40. The time is 4:40. Okay, so this is the answer of the A part of question number 1. Chali. Now moving next to the B part. Okay, so I'll just change it here because all these are same. Only the sum number is changed, but the answers are different only. So I'm just going to change it only. But you have to do. Okay, you can do all these sums in your book only. Okay, no need to do in your notebooks. Just do it on your notebook book only. So now moving to the B part of question number 1. Again, we have to tell the time in the 3 different ways. Okay. In this also we have to tell the time in the 3 different ways. So according to the book, in the second clock you can see our hand is between 3 and 4 and the minute hand is at 3 and 4 and the minute hand is between these two. It's near about 43. Okay, so it is the time that is being shown in your second watch, that is in your book in the B part. So the hour hand is between 3 and 4. The hour hand is between 3 and 4 and the minute hand is between 8 and 9. Okay, now what is the time? That is how many minutes have already been passed. So that means 3 ऑलरेडी बज चुके हैं बट 4 हमारे पास बजने वाले हैं. सबसे पहली चीज दैट यू हैव टू सी दैट क्या टाइम हो चुका है ऑलरेडी इन द आर एंड द आर रेशियो, मतलब आर के अकॉर्डिंग कितने आवर्स हो चुके हैं और कितना होने वाला है. सो दैट मीन्स 3 हैज ऑलरेडी बीन स्टार्ट, 3 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड 4 इज अबाउट टू स्टार्ट. तो 4 अभी ऑलरेडी बजने ही वाले हैं. सो 3 आवर्स 3 o'clock ऑलरेडी हो चुका है. सो दैट मीन्स हाउ मैनी टाइम और हाउ मैनी मिनट्स हैव ऑलरेडी बीन पास टिल 3 o'clock. सो 3 o'clock हुए कितना टाइम हो चुका है. सो दैट मीन्स okay, as you can see that this minute hand is between 9 and 8 and it is 40, 41, 42 and 43. So it is at 43. So that means 43 minutes have already been passed. Okay, 43 minutes have already been passed till 3 o'clock. Okay, so the time is 40 minutes past, 43 minutes past 3. तो 3 बजे हुए ऑलरेडी हमारे 43 मिनट्स हो चुके हैं. सो दैट इज द टाइम इज 43 मिनट्स पास्ट 3. तो 3 बजे हुए हमारे ऑलरेडी 43 मिनट्स हो चुके हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम. ओके, दिस इज द यू आर गोइंग टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, फर्स्ट वे, इट नॉट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वे. दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग द टाइम. सेकेंड वे, तो देखिए अब आपको सेकेंड तरीका क्या है. जो 4 बजने वाले हैं, सो दैट मीन 4 बजने में अभी कितना टाइम बाकी है. तो 4 बजने में हमारे पास 17 मिनट्स बाकी हैं. तो 17 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट. ओके, 17 मिनट्स अभी देखिए 2 मिनट्स ये हैं 43, 44, 45. 2 मिनट्स आर दिस एंड 15 मिनट्स आर दिस. तो 15 + 2 इज 17. तो 4 बजने में अभी कितने मिनट्स बाकी हैं. दैट इज 17. सो यू विल राइट द टाइम इज 17 minutes to 4. 4 बजने में अभी 17 मिनट्स बाकी हैं. ओके, लास्ट इज इन सिंबल इट इज. तो इसको अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज द टाइम, सो यू विल राइट इट इज 3:43. इट विल बी 3:43. सो इट विल बी रिटन एज 3:43. Okay, so this is how you are going to write the time in the 3 different ways. Okay, so this was the first question of exercise 13.1 and the C part that you are going to try by yourself. Okay, just iski tarah hi hai beta. Okay, so just try to do it yourself.
Okay, so okay, not there is only not one part, there are two more parts, C, D and E. So these three parts, all these three parts, and you have to do it in the book only. तो आपको सिर्फ इसको बुक में ही करना है. Okay, so just do C, D and E part of question number 1 of exercise 13.1 in your notebooks. Okay, and if you will be having any doubt, that we will clear it in an online class. Okay, so with this I am just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.